जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? So let's start the demo lecture. Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy. And this is a demo lecture for the Code of Civil Procedure. Okay? Now the first thing you need to understand about CPC is the importance of CPC. Right? देखो, laws are mainly divided into two categories. The first is criminal. Right? And in the criminal laws, just the subjects that we study, they are limited to the BNS and the BNSS. Right? द भारतीय न्याय संहिता एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, तो क्रिमिनल में जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं दे आर लिमिटेड टू दीज टू सब्जेक्ट्स. ऑलमोस्ट एवरी अदर सब्जेक्ट दैट वी हैव टू स्टडी फॉल्स अंडर द सिविल कैटेगरी. ठीक है, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, और इट कैन बी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इट कैन बी हिंदू लॉज, और इट कैन बी मुस्लिम लॉज, और इट कैन बी IPR, और इट कैन बी कंपनी लॉ, or it can be labor law, or it can be the Sale of Goods Act, tort, partnership, registration, limitation, all of them are civil. ठीक है, तो we can comfortably say that civil is much more broader than criminal. Criminal में हम लोग क्या पढ़ते हैं? BNS and BNSS, that is it. Almost every other subject that we study falls under the civil category. तो हम लोग कह सकते हैं कि 90% laws क्या होते हैं? Civil होते हैं. ठीक है, and to regulate the 90% of the laws, there is only one code, which is the CPC, right? So you can see that CPC immediately becomes important for you to study because it regulates 90% of the laws. ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CPC की इंपॉर्टेंस क्या है. CPC regulates 90% of the laws. That is why CPC is a very important subject for you to study. ठीक है, now that was from an understanding point of view, that if you want to understand law you must be thorough with the CPC. अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, so from an exam point of view, देखो, at the prelim stage you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC itself. ठीक है, जो राजस्थान का प्रीलिम्स अभी हुआ था 23 जून को, वहां पर आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस 16 जो थे वो CPC से आए थे, और जो DGS का पेपर हुआ था वहां पर भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 26 वर फ्रॉम CPC. तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सब्जेक्ट. तो यहां से इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 to 20 क्वेश्चंस. वो तो प्रीलिम्स में है, बट एट द मेन स्टेज देखो, देयर विल बी अ सेपरेट पेपर फॉर प्रोसीजरल लॉ, राइट? एंड इन दिस यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द CPC एंड द BNSS एंड द भारतीय साक्षरता अधिनियम, दैट इज द BSA, राइट? सो इवन एट द मेन स्टेज यू कैन सी that 1/3 weightage is still given to the CPC, right? Mains में भी अभी भी आ रहा है यहाँ पर CPC का weightage. Not only this, in some mains exam, not all, but in some mains exam, you will have to write the plaint, you will have to write the written statement, and in some exams, even the judgment writing is going to be there, right? So remember that you will only be able to write the plaint when you are thorough with CPC. You will only be able to write the WS when you are thorough with CPC, and same is the case with judgment writing, कि उसमें भी आपको CPC से thorough होना पड़ेगा, right? So CPC becomes a very important subject for you to study even from an exam point of view. आ जाओ बेटो, चलो. So देखो, my point here is that the code of civil procedure is a very important subject. Why? Because criminal में हम लोग क्या पढ़ते हैं? BNS and BNSS, that is it. सिविल में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, TPA, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, IPR, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, बहुत सारे एक्ट्स आ रहे हैं. सो 90% लॉज क्या होते हैं? सिविल होते हैं. एंड देयर इज ओनली वन कोड, द CPC, टू रेगुलेट ऑल दीज लॉज. सो इमीडिएटली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. अब एग्जाम में जाए तो एग्जाम में एट द प्रीलिम स्टेज यू गेट समवेयर बिटवीन 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम CPC इटसेल्फ. और अगर मेंस में जाते हैं तो देयर इज अ सेपरेट पेपर फॉर प्रोसीजरल लॉ, और यहां पर यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम CPC, BNSS एंड द BSA. सो 1/3 वेटेज अभी भी CPC को मिलती है. और अगर एग्जाम में, मेंस एग्जाम में प्लेन लिखना हो, WS लिखना हो या जजमेंट लिखनी हो, तो उसके लिए भी आपको CPC आनी चाहिए. ठीक है, सो माई पॉइंट हियर इज दैट CPC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो. ठीक है, तो CPC बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्टडी CPC, बिकॉज it is a very important subject, and if you don't know the proper way to study CPC, it can be really confusing.
So in this lecture, what we are going to do, we are going to study what is the proper way of studying CPC. ठीक है? And to properly study CPC, we have to divide CPC into two parts. ठीक है? The first part is the sections and the other part is the orders. ठीक है? So to understand CPC, we divide CPC into sections and orders. Now what are sections and what are orders? देखो, sections give you the general principles or the broad framework. Right? Sections, they only give you the principles of the framework, but they do not give you any details. There will be no details in the sections. Okay? Orders, on the other hand, these are deemed as the real elaboration of proceedings, and these are the provisions which are going to contain the details. ठीक है? So to understand CPC, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे sections में और orders में. Sections क्या करते हैं, they give you the principles of the framework but they don't give you the details. Details के लिए हम लोग को हमेशा कहाँ जाना पड़ता है, orders पे जाना पड़ता है. ठीक है? अब देखो, ध्यान सुनना इस बात को. For almost every important section there will be a corresponding order. For almost every important section there will be a corresponding order. So the question was, how do you study CPC? We study the section and then we directly jump to the corresponding order. ठीक है? हम लोग कभी भी CPC को section wise नहीं पढ़ेंगे and order wise भी नहीं पढ़ेंगे. Right? कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन पढ़ेंगे और सीधा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. दैट इज अ प्रॉपर वे टू स्टडी सीपीसी. सेक्शन क्या बता देगा, प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क, और डिटेल्स हमें कहाँ मिल जाती है, ऑर्डर्स में मिल जाती है. ठीक है? सो दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इन दिस लेक्चर कि सीपीसी को ऐसे पढ़ना चाहिए, सेक्शन के साथ हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पढ़ना चाहिए. ठीक है? लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ अ सेक्शन व्हिच हैज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर. सपोज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का. So for this we need section 26 and the order is order 4. So after section 26 we don't go to 27, we directly go to order 4. ठीक है? अब 27 पे क्यों नहीं गए? Because section 27 to 32 this is a complete different topic. This is summons. और इसके लिए जो corresponding order है वो भी different है, that is order 5. तो 27 to 32 पढ़ने के बाद हम लोग 33 पे नहीं जाएंगे. कहाँ जाएंगे? सीधा ऑर्डर 5 पे चले जाएंगे. अब 33 पे क्यों नहीं गए? बिकॉज सेक्शन 33 जो है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. दिस इज जजमेंट एंड डिक्री. राइट? और इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर 20. ठीक है? तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. ठीक है? अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूशन का, so for execution we need sections 36 to 74 and the order is order 21. ठीक है? सेम चीज यहां पर भी सेक्शंस पढ़ेंगे, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. ठीक है? अगर मान लो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट अपील्स का, so for first appeals we need sections 96 to 99 and the corresponding order is order 41. सेम थिंग यहां पर भी करेंगे हम लोग. अगर हम लोग सेकेंड अपील्स पढ़ रहे हैं, so for second appeals we need sections 100 to 103 and the order is order 42. Again same thing हम लोग करेंगे. अगर हम लोग पढ़ रहे हैं appealable orders, ठीक है, तो appealable orders के लिए हम लोग पढ़ते हैं section 104 and the order is order 43. ठीक है? अगर मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं reference, so reference के लिए हमें चाहिए section 113 and the order is order 46. अगर हम लोग पढ़ रहे हैं review, so for review we need section 114 and the corresponding order is order 47. ठीक है? few examples जहां पर की सेक्शन का है corresponding order होता है. there are many more examples, जैसे कमीशंस के लिए section 75 और 26, कॉस्ट के लिए section 35 और 20A. ठीक है? there are many more examples. रिसीवर टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करो, section 94C और 39, रिसीवर के लिए section 94D और 40. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स जहां पर की सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है. ठीक है? सो हम लोग को करना क्या है, so यहां पर देखो, अगर हम लोग रेफरेंस पढ़ रहे हैं सेक्शन 113, तो इसके बाद हम लोग 114 पे नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक. इसके लिए हम लोग जाएंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे. ठीक है? दिस इज गोइंग टू गिव अस द
principles or the framework, but the details are always going to be in the orders. ठीक है, चलो अब देखो, one such example is of an interpleader suit. इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 88 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है. नो यश, वी डोंट. नॉट एवरी सेक्शन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. जितने का है उसका याद रखना पड़ेगा, राइट. सो वन सच एग्जांपल इज इंटरप्लीडर सूट्स. ठीक है, इसके लिए द सेक्शन इज सेक्शन 88 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर इज ऑर्डर 35. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, इंटरप्लीडर सूट्स का. बट मेरा पॉइंट इंटरप्लीडर सूट्स पढ़ाना नहीं है. मेरा पॉइंट है कि सेक्शन के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाना. आपको कहां जाना है, सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे. सेक्शन क्या करेगा, प्रिंसिपल बताएगा, फ्रेमवर्क, डिटेल्स के लिए हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे. ठीक है, चलो बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर इन द मैसेजेस. एवरीवन हु हैज ज्वाइंड लेट, अदिति, अंशिका, भारती, दीपक, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, प्लीज टाइप योर नेम एंड योर फोन नंबर. चलो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 88 एंड 35. बिफोर वी गो इनटू द बेयर एक्ट, आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं उस एग्जांपल को बार बार यूज करूंगा पूरे लेक्चर में. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सपोज there's a person A and he is the owner of a house. ठीक है, he gives his house to B for safekeeping, right, and promises B that I will give you rupees 20,000 per month as salary and any kind of repair costs or any kind of charges जैसे electricity या water etc. ठीक है, electricity, water etc. ठीक है. So A was the owner, he gave his house to B for safekeeping, said I will give you a monthly salary. कोई भी कॉस्ट या चार्जेस लगेंगे मैं वो सारा पे कर दूंगा. ऑल यू हैव टू डू इज कीप माई हाउस सेफ. ठीक है, नाउ ए हैज 2 चिल्ड्रेन एक्स एंड वाई, राइट. इसके बाद क्या होता है, ए डाइज. एज सुन एज ए डाइज, एक्स एंड वाई दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड एक्स गोज टू बी एंड सेज दिस इज माई हाउस. Similarly, Y also goes to B and says the same thing, that this is my house. ठीक है, after A's death, both the children of A they start fighting over the property. और X जाता है B के पास, कहता है this is my house, and similarly Y also goes to B and says the same thing, that this is my house. ठीक है, अब यहाँ पर B की सिचुएशन को देखना पड़ेगा. We have to see B situation because X and Y both are children of A and both are claiming the property for themselves. ठीक है, so what is B's situation here? इसको ध्यान सुनना. B's situation, सबसे पहले B कहता है इस घर में मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है. I have no interest in this house. I have no interest in this house, right? घर तो मेरा नहीं है तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने चार्जेस एंड कॉस्ट चाहिए जो कि ए ने मुझसे प्रॉमिस किया था. ठीक है, he said I only want my charges and costs, right? So मेरा इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे अपने चार्जेस एंड कॉस्ट चाहिए. थर्डली वो बोलता है कि एक्स और वाई में से जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा मैं उसे घर दे भी दूंगा. ठीक है, he says I am ready to give the house to the rightful claimant. ठीक है, लास्टली सेज प्रॉब्लम ये है लेकिन कि मुझे पता नहीं है कि इनमें से राइटफुल क्लेमेंट कौन है, बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ ए. ठीक है, ही सेज बट आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट, राइट. सो यहां पर देखो बी की सिचुएशन को ध्यान से सुनना. ही सेज आई हैव नो इंटरेस्ट इन द हाउस, आई ओनली वांट माय चार्जेस एंड कॉस्ट, I am ready to give the house to the rightful claimant, but the problem is I don't know who is the rightful claimant. ठीक है, अब इसके बाद what B does is B goes and files a suit against X and Y, both of them.
ठीक है, एक सूट फाइल कर देगा उन दोनों के अगेंस्ट, एंड देन ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन हिज सिचुएशन टू द कोर्ट। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे वो कोर्ट को एक्सप्लेन कर देगा। कोर्ट आफ्टर लिसनिंग टू बी सिचुएशन वो दो चीजें करती है। पहला, बी को उसके चार्ज एंड कॉस्ट करके डिसमिस कर देगी, अवॉर्ड बी हिज चार्जेस एंड कॉस्ट्स एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। राइट, देखो बी का इस सूट में और कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऑल ही वांटेड वाज हिज चार्जेस एंड कॉस्ट। तो कोर्ट कहेगी ये रहे आपके चार्ज एंड कॉस्ट एंड नाउ यू कैन लीव द सूट। ठीक है, अब बी तो यहां से चला गया, कौन बच गया? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, दोनों में से किसी एक को उठा करके प्लेंटिफ बना देती है और द अदर वन कंटिन्यूज एज द डिफेंडेंट। ठीक है, तो सूट बन जाता है इधर एक्स वर्सेस वाई या फिर वाई वर्सेस एक्स, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द सूट कंटिन्यूज इन द ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, अब देखो यहां पर बी ने जो इनिशियली ये सूट फाइल किया था अगेंस्ट एक्स एंड वाई, इसी सूट को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज एन इंटरप्लीडर सूट। ठीक है, बी का सूट अगेंस्ट एक्स एंड वाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। अगर कभी भी तुम्हें फिगर आउट करना है कि ये एक इंटरप्लीडर सूट है या नहीं है, देयर इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, एंड द टेस्ट सेज कि इन एन इंटरप्लीडर सूट the real conflict is not between the plaintiff and the defendants, the real conflict is between the defendants। यहां x और y के बीच में रियल कॉन्फ्लिक्ट था यहां पर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्लियर है एवरीवन? ठीक है बेटा, ओके चलो चलो बेलाग पे देखते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके हम लोग बेलाग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो हियर वी हैव सेक्शन 88 विच इज इंटरप्लीडर सूट्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। 88 क्या लिखा है देखो, वेयर टू और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर। हमारे एग्जांपल में कौन था? एक्स और वाई, दे वर क्लेमिंग द प्रॉपर्टी एडवर्सली, मतलब एक्स वाज क्लेमिंग फॉर हिमसेल्फ एंड वाई वाज क्लेमिंग इट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, द सेम डेट, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और immovable. So we have taken the example of an immovable property. It can be a movable property, it can be money, right? From another person. So X and Y, they were claiming the property from B. ये कौन है? From another person. This is B. B who claims no interest therein. B ने अपने सिचुएशन में कहा था, I have no interest in the property other than for charges and costs. मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने चार्ज एंड कॉस्ट चाहिए। एंड देखो ध्यान से करके, एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। एक्स और वाई में से जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा, मैं उसे प्रॉपर्टी देने को भी रेडी हूं। देन क्या होता है? सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स। इसलिए बी का सूट एक्स और वाई दोनों के अगेंस्ट था। अगर मान लो कि कोई थर्ड क्लेमेंट है जेड, तो बी का सूट एक्स वाई जेड तीनों के अगेंस्ट होगा। ठीक है, और लास्टली क्या लिखा है? For the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made। तो पर्पस क्या है सूट फाइल करने का? कि ये घर की डिलीवरी हमें किसे देनी है। ठीक है, अगर यहां पर याद हो जो बी की सिचुएशन थी, उसने उसमें फोर्थ पॉइंट में क्या बोला था? बट आई डोंट नो हु इज द राइटफुल क्लेमेंट। यही बन जाता है हमारा पर्पस ऑफ फाइलिंग द सूट। ठीक है, अब देखो, एंड लास्टली क्या लिखा है? एंड ऑफ ऑब्टेनिंग indemnity for himself। ठीक है, indemnity for himself। what do you mean by indemnity? anyone? indemnity का मतलब क्या होता है? लॉ तुम लोग का चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है? चल रहा है। ओके, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आता है। ठीक है, indemnity का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखी है एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि बी ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्स और वाई में से कोई मेरे ऊपर सूट फाइल कर दे कि मेरी प्रॉपर्टी को वापस नहीं कर रहा है ये। ठीक है, दैट इज द इंडेमनिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, कि भाई मुझे कोई लॉस या डैमेज ना हो इसकी वजह से। ठीक है, चलो सेक्शन का मेन पार्ट क्लियर है, अभी प्रोवाइजर तो बचा हुआ है। फ्रॉम द एग्जाम्पल इज इट क्लियर? डू यू नीड अदर एग्जाम्पल? दूसरा समझ आ रहा है? एक्चुअली एक स्टूडेंट ने बोला है कि एक और एग्जाम्पल चाहिए मुझे। ओके चलो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, थोड़ा सिंपलर वर्जन और लगते हैं। ओके, सो टुडे
एवरीवन हैज अ बैंक अकाउंट, सबके पास है बैंक अकाउंट। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, वहां पर एक नॉमिनी का सेक्शन होता है, राइट, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये पैसा हम लोग किसे देंगे, राइट। चलो, व्हाट वी डू, समटाइम्स हम लोग वो नॉमिनी का सेक्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। चलो, मान लेते हैं सपोज इज अ पर्सन पी, जिसने अपना बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें नॉमिनी का सेक्शन उसने ब्लैंक छोड़ दिया था, ठीक है। अब P हैज सपोज ₹30 lakhs इन हिज अकाउंट, और ये किसके पास है, बैंक के पास है, ठीक है। सपोज P डाइज, ठीक है। अब P मर जाता है, पैसा किसके पास है, अभी बैंक के पास है। सपोज एक पर्सन आता है Q और बैंक से बोलता है that P was my father and now the money belongs to me, ठीक है। ऐसे ही एक पर्सन आता है R और वो भी सेम चीज बोलता है that P was my father and the money belongs to me, और ऐसे ही S और T ये चारों के चारों बारी बारी से आते हैं बैंक के पास क्लेम करने के लिए कि P was my father and the money belongs to me। सो क्वेश्चन है कि क्या बैंक एक इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट QRST या नहीं, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही है कि P ने नॉमिनी का सेक्शन ब्लैंक छोड़ दिया था और वो मर चुका है, तो उसका पैसा वो किसे दे, क्योंकि QRST ऑल ऑफ देम आर क्लेमिंग इट फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर बैंक इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता है या नहीं। चलो इसे देखते जरा एक बार हम लोग यहाँ पर। तो क्या लिखा है, वेयर 2 or more persons claim adversely to one another, QRST, और यहां पर क्या लिखा है, सम ऑफ मनी, मोर देन वन पर्सन एडवर्सली और सम ऑफ मनी क्लेम कर रहे हैं फ्रॉम अनदर पर्सन। ये कौन है, बैंक है, ठीक है। बैंक हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, भाई ये 30 लाख रुपीज मेरे नहीं है, आप लोगों में से किसी के हैं। एंड क्या कहता है, अदर देन फॉर चार्जेस एंड कॉस्ट, लेकिन बैंक भी अपने चार्जेस एंड कॉस्ट लेता है हमेशा। एंड लास्ट लिखा है एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। QRST में से जो भी राइटफुल क्लेमेंट होगा मैं उसे देने को भी रेडी हूं, राइट। द बैंक सेज देन सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स। तो बैंक का सूट होना चाहिए अगेंस्ट QRST सारे के अगेंस्ट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड। तो यहां पर डिलीवरी की बात तो नहीं आएगी, पेमेंट की बात आएगी यहां पर। तो बैंक कह रहा है कि ये पेमेंट मैं किसे करूं। एंड लास्टली द बैंक सेज एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, बैंक ये कहना चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि QRST में से कोई मेरे ऊपर ही सूट फाइल कर दे कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है बैंक, ठीक है। सो यहां पर द बैंक इज गोइंग टू फाइल एन इंटरप्रीटर सूट अगेंस्ट QRST, ठीक है। अभी क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। चलो, सो ये तो था हमारा सेक्शन का मेन पार्ट। नाउ we go to the proviso. Online students, is it clear? Anshika, I cannot see everybody's names. एक मिनट रुक जाओ। If you have any questions, you can ask. चलो, let's go to the proviso. देखो, proviso में क्या लिखा है, चलो पहले कॉमन से समझाता हूं। सपोज जो ये वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था इसमें कि बी ने सूट फाइल किया अगेंस्ट एक्स एंड वाई, मान लो कि इसमें से एक्स ने एक सूट ऑलरेडी फाइल कर रखा होता बी और वाई के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स ने एक सूट ऑलरेडी फाइल कर रखा है बी और वाई के ऊपर और ये सूट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो प्रोवाइजो कहता है कि अगर एक सूट पेंडिंग है जिसमें कि सारी पार्टीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, वहां पर अगर बी जाकर के अपना इंटरप्रीटर सूट फाइल करेगा तो ये इंटरप्रीटर सूट अलाउड नहीं होगा। So if a suit is already pending in which all parties are present, then the interpleader suit is not allowed, ठीक है। That is a proviso। एक बार पढ़ना इसे। proviso कहता है provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted, ठीक है। So अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है जिसमें कि सारी पार्टीज प्रेजेंट हैं तो वहां पर इंटरप्रीटर सूट हमारा अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एंड द रीजन इज कि हम लोग बी को इसी सूट में उसके चार्जेस एंड कॉस्ट देकर के डिसमिस कर सकते हैं और ये सूट क्या बन जाएगा, एक्स वर्सेस वाई। तो हमें यहां पर
इंटरप्रेटर सूट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है. सो दैट इज अ प्रोवाइजो, ठीक है. Subscribe for more content.